मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। So, ladies and gentlemen, has Mallikarjun Kharge now also trying to refer to Narendra Modi as a snake, venomous snake? ऐसा सांप जिसको मारना जरूरी है. What explains this kind of low-level politics today that we are seeing? This is a big Maharashtra battle. You are looking at a fierce contest between both sides. The campaigning now has come to an end. But is the Congress looking, really in a panic mode? Otherwise, what explains this gali politics day in and day out against the Prime Minister? From the khoon ki dalali to the zehar ki kheti to what not? They've even not spared the Prime Minister's late father, his late mother. The Prime Minister has said, I have now become gali proof. Jitna कीचड़ फेंकेंगे कमल उतना ही खिलेगा is what the Prime Minister has said. But what explains this, galis, this low level of abuse right now in Rahul Gandhi's Mohabbat ki dukaan? Why is Mallikarjun Kharge wanting to refer to the BJP/the RSS? We do not know whether he believes that Narendra Modi is the snake here. But why is Mallikarjun Kharge using that language? For a moment, just think. For a political side that says that we are fighting on ideology, we are fighting on a principle, why have they been hitting out at Narendra Modi? Are there no other issues? And do they not know that the more they attack Modi, the more Modi benefits? The more that hate backfires on the Congress and it is advantage the BJP. On your screens are multiple attacks. Multiple attacks. If I sit down to, just put this list out, my team tells me 100 plus, abuses. 100 plus galis against Narendra Modi. You remember the Chai Wala attack to the Neech Aadmi, Ravan, Bhasmasur, Hitler, Napunsak? Everything, every hurl, every abuse that they have used against Narendra Modi. But why is the Congress doing this now? When they have a Mohabbat ki dukaan, when we are told that Rahul Gandhi, as the LOP, is the shadow Prime Minister, when Rahul Gandhi, they say, is becoming very popular, and Narendra Modi's popularity, they say, is going down and down and down and down. Why are they using these abuses? Let's quickly say good evening to a panel of guests joining us. Rohan Gupta is the BJP's national spokesperson. Kailash Adhikari is the MD for Governance Now. Advocate Susiben Shah represents the Shiv Sena. Chandrasekhar Jhaji represents the Shiv Sena, the UBT faction here. IP Singh Saab represents the Samajwadi Party. And Advocate Kaushal Mukta is the Congress leader. And we'll begin by asking Kaushal, कि कौशल गाली देने से क्या होता है? क्या कांग्रेस और मजबूत होती है? क्या आपकी मोहब्बत की दुकान और बढ़िया तरह से चलती है? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही, मुझे तो दुख हो रहा है कि विपक्ष को इस प्रकार से और इस प्रकार कांग्रेस को इस प्रकार से कटघरे पर खड़ा करना मीडिया की एक आदत हो चुकी है। कहां तो जो है इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, विकास पर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी महाराष्ट्र के अंदर या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, परंतु अगर आप आज उठाकर देखेंगे किसी भी चैनल को, किसी भी अखबार को, उसको कांग्रेस की तरफ इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि कांग्रेस जो है एक विशेष धर्म की विरोधी है। और नहीं, सुनिए कौशल, पहली बार नहीं है कि आप मीडिया पर अटैक करते हैं। मीडिया आपसे सवाल पूछता है, आईपी सिंह साहब को भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है चंद्रशेखर झा जी क्योंकि आपके दोस्त बन गए हैं उनको भी ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको कौन रोक रहा है डेवलपमेंट पे बात करने के लिए? आपको कौन रोक रहा है, या राहुल गांधी को कौन रोक रहा है ये कहने के लिए कि मुसलमानों को एक साथ नहीं होना है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके लिए वोट क्यों मांग रहा है? मुझे ये बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे किसको साहब बुला रहे हैं?
सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे क्यों ये कहते हैं कि जो हमें बांटेगा उसे कूटेंगे, उसे मारेंगे? क्यों आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। इस मुद्दे को आप जितना मर्जी आप जो है इसको धर्म हिंदू और मुसलमान की तरफ ले जाएं, ये नहीं जाएगा। रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की, अगर उन्होंने किसी संदर्भ में बयान दिया है, हम देश के वल्लभ भाई पटेल जी जिनकी मूर्ति को पूजने का काम भाजपा के लोग करते, उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। अगर आरएसएस के संदर्भ में कोई बात कही तो वो अतीत को समझ करके कही गई बातें हैं। वो जो है अतीत को आप झुटलाया नहीं जा सकता है, अतीत को बदला नहीं जा सकता है। उसको बैन किया गया, 3 बारी बैन किया गया, 1949 के अंदर बैन किया गया। आपको जहर की खेती याद है ना? जहर की खेती, खून की दलाली, भस्मासुर, रावण, ऐसा नहीं है। कौशल लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। क्या 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 बार बार बोलेंगे आप बताइए? राहुल गांधी जी को भी गाली देती है। आपको अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता। हमारे किसी नेता ने गाली नहीं दी, हमारे किसी नेता ने किसी को एक व्यक्ति का नाम लेकर कभी गाली नहीं दी। क्या बात कर रहे हैं? अब आप देखिए, अगर मजबूर करेंगे, अगर मुझे मजबूर करेंगे तो मैं लिस्ट पढ़ दूंगी ना, मैं लिस्ट पढ़ दूंगी। फिर सिंह साहब आपको भी दिक्कत होगी और मुझे लगता है चंद्रशेखर झा को भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी को डंडा मारेंगे, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, आपके सुबोध कांत सहाय, फिर कांग्रेस के नेता, आपने एक्शन लिया? मुझे बताइए क्या किया उनके खिलाफ आपने? शेख हुसैन है कांग्रेस के नेता, कहते हैं मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है? और कांग्रेस कहती है मोहब्बत की दुकान चलाते हैं सिंह साहब। कांग्रेस को गाली देते, पर कांग्रेस ने कभी किसी को गाली। सिंह साहब आप भी कुछ अलग नहीं है ना? समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ बहुत अच्छा बोला हो। ठीक है, आपके ओपोनेंट है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है सर। याद दिला दे रहा हूं, जरा वो भी बता दीजिए, जब मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी को इटली की कुतिया बताया था, वो भी तो बताया। अरे देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? सिंह साहब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना सर, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कौशल ने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया, तो मुझे चंद्रशेखर झा जी ये पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ी। आप तो अभी कांग्रेस के दोस्त बने हैं सर, लेकिन आपको तो ये कमेंट्स तो याद होंगे ना, याद तो होंगे सर झा जी। भाजपा के कमेंट्स गिना रहे तो would you support this and what is Uddhav Thackeray saying when he says कि जो हमें बांटेगा उसे कूटेंगे, उसे मारेंगे? It is very correct, because Mr. Modi has started all these things, and particularly when he says somebody is not a biological son of his father, so he should be also be replied like this, because he needs to be answered to. So you're saying this is payback time? No, you are making this very clear that you're doing this purposely. You're doing this intentionally. No, purposely. If Mr. Modi speaks like this, being a prime minister of the nation, so he should also have to face all these things. And it is very categorically because he has started all these things, so he has to hear all these things. Imagine. I mean, I am stunned to listen to this reply. Susi Ben, Kailash Adhikari, and Rohan, I will get you in to respond to this. But look at how brazen this has become, Kailash. There is not even a mask anymore, no pretense anymore कि हमने नहीं बोला, you are misquoting us, we pulled up that person. They are saying अगर नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उनको तैयार रहना चाहिए रोहन गुप्ता to listen to this language. We will respond in kind, Rohan. देखिए, this is the mindset what opposition parties are having today. We are on verge of, after 2 days there is Maharashtra election, और ऑपोजिशन में है, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे, मुद्दों का अकाल हो गए। उनके प्रेसिडेंट जहरीली बात करते हैं, उनके प्रेसिडेंट पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? इट इज दे हैव गिवन अप, बिकॉज अगर ऑपोजिशन में होते दे कुड हैव स्पोकन अगेंस्ट द इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, against the issues faced by people. They don't have any issue. That itself shows that they have given up in Maharashtra. कौन ऐसी बातें करेगा? जो चीज जस्टिफाइड है ही नहीं। मोदी जी के ऊपर जब पर्सनल कमेंट किए है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है, पर नहीं सुधरेंगे। मणिशंकर अय्यर हो, उनको पाकिस्तान प्रेम है, मोदी को खराब बोलना आज का थोड़ी देखा है, और हर बार जनता ने जवाब दिया है, पर ये नहीं सुधरेंगे। जब गुजरात का चुनाव था तब भी इनके अध्यक्ष ने मोदी जी के बारे में पर्सनल टिप्पणी की थी। अभी का लास्ट चुनाव की बात कर रहा हूं, हर चुनाव में किया और हर चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है। पर फ्रस्ट्रेशन मरता क्या ना करता, जिसने इलेक्शन को गवा दिया है, जिसको मालूम है कि हम जनता के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, उसकी मजबूरी है। और जब अपना सर बचाने की मजबूरी हो तो मैडम मैं उनकी गलती नहीं निकालता हूं। जब मजबूरी आदमी की होती है जिंदगी के लिए तो किसी भी हद तक जा सकता है। उसका एग्जांपल आज ऑपोजिशन पार्टीज हमको दिखा रही है। बट क्या मजबूरी है ऐसी? सिंह साहब आप मुझे बताइए ना, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इस तरह के लेवल की बातचीत करनी पड़ रही है, उसको एंडोर्स करना पड़ रहा है, और टेलीविजन पर कहते हैं जी हाँ हम ऐसी ही बात करेंगे।
हाँ प्लीज 2 मिनट दे दीजिएगा। गाली मत देखिए- बोलिएगा, बस गाली मत बोलिएगा। नहीं, क्या आपको लगता है हम गाली बकते हैं? तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उठ जाता हूं अगर ऐसा आपने कभी भी सुना हो तो। सर पूरे मैंने अभी आपको बताया ना, एटलीस्ट 100 ऐसी गालियां हैं सर जो हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे चला रहे हैं। आप जो मुझे बताइए बीजेपी के किसके लिए आप लोगों ने माफी मांगी है? भाई, अगर मुझे मुद्दे हैं बोलने सर, दीजिए। मुद्दों पे लड़िए ना, राजनीति करिए, अरे लेकिन मुझे पर्सनल बोलने तो अटैक्स क्यों? देंगे, मुझे बोलने तो दीजिए। मणिपुर में गृह युद्ध हो रहा है, वहां मुख्यमंत्री के घर को लोगों ने घेर लिया, 3 मंत्रियों के घर जला दिए गए, 3 विधायकों के घर जला दिए गए। आपातकाल जैसी स्थिति देश में है, न गृह मंत्री बोलने को तैयार, न बीजेपी बोलने को तैयार। बीजेपी प्रवक्ता करें हमारे पास मुद्दे नहीं है। सवाल यह है कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं और दलित समाज बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कागजों पर प्रधानमंत्री ओबीसी तो बन गए, लेकिन ओबीसी की मां की कोख से वो नहीं पैदा हुए, इसलिए न वो पिछड़ों का दर्द जानते, न दलित वर्ग का सिंह साहब जानते। कहां पहुंच गए सर? मणिपुर तक बढ़िया था, मणिपुर पर घेरिए सर सरकार को, सवाल पूछिए। रोहन गुप्ता शो पर है, रोहन गुप्ता जवाब देंगे। उसके बाद आप जाति पर आ जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री पर, उनकी मां पर। देखिए ना, मतलब यही मजबूरी है ना कौशल। मां क्या, मैंने कहा ना उस कोख से नहीं पैदा हुआ, खुद कह रहे हैं कि नाम का लोग सर आप मुझे बताइए, अगर आप प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते क्या इलेक्शन? देश की आबादी आपको लगता है कि अखिलेश यादव सर जो उत्तर प्रदेश में बाइपोल्स है, या राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार क्या सिर्फ गालियों से चुनाव जीत सकते हैं? ये बताइए ना। दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब उन्हें हटाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश का दर्द उन्हें नहीं पता। 12 बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे जलकर मर गए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चे मर गए, कानपुर में बच्चे मर गए। तो उस पर सवाल उठाइए ना सिंह साहब, कौन रोक रहा है आपको? कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन बनिए सुसी बेन, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन बनिए ना। Not about galis, not about just hitting out at the Prime Minister all the time, Susi Ben. You'll have to unmute, ma'am. Good evening to all, and the way this Indi Gadbandhan is behaving as if they have formed the government, not realizing that all together the BJP by itself has got more seats and they have a right to govern. The Prime Minister is respected everywhere. Today only he got the highest civilian award in Nigeria. Earlier it was France. And here we have people bickering and talking nonsense about the Prime Minister. He is, after all, the Prime Minister of 1.2 billion people. Whether you like it or not, he's the constitutional head. We have to respect him. We have to respect him. Always. I mean, there is no exception to that. As far as Maharashtra is concerned, let it be known to everyone that Maharashtra is the government which functions on the principle of justice for all, appeasement to none. तुष्टिकरण किसी का नहीं। अब हमारी वेलफेयर स्कीम देखिए, क्या कभी हमने सलमा और शबनम या सुषमा को सेपरेट किया है? आदित्य को भी जो वेलफेयर मिला वो आमिर को भी मिला। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इट्स ऑन द प्रोग्रेसिव स्टेट. वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद विकास एंड विश्वास. एज फार एज दीज गाइज आर कंसर्न, दे हैव नो एजेंडा. भस्म कर देंगे, जेल में डाल देंगे, स्क्रैप कर देंगे, ये खत्म करेंगे. That's all that they're talking about. Okay. Kaushal, you're nodding your head vociferously. What is it that you want to say? क्या कहना चाहते हैं? Every word that I've सबसे said पहले is तो true. ये कि आप हमें अनम्यूट ना क्या करें, विपक्ष को आप अनम्यूट ना क्या करें, म्यूट ना क्या करें. मेरे अरे अनम्यूट आप ही करते हैं सर, हम नहीं करते हैं. सुन लीजिए, जैसे ये कह रहे हैं कि सबका विकास, हम जो है सबका विकास सबका विश्वास की बात कह रहे हैं. अगर आप सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते तो सांप्रदायिकता और दंगा नहीं फैलाते. रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, हम उनका प्रधानमंत्री के नाते जो है उनका हम सम्मान करते हैं, परंतु अगर प्रचार मंत्री बनेंगे और जो है पूरे देश के अंदर जो प्रचार करने पहुंच जाते हैं, मणिपुर नहीं पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश में बच्चे जिंदा चल गए वहां नहीं पहुंचेंगे, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने बात कही, वहां आप नहीं पहुंचेंगे, प्रचार करने हर जगह पहुंचेंगे तो विरोध भी आपको झेलना पड़ेगा. रही बात हमारे जो है गुप्ता जी कह रहे थे
गुप्ता जी तो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता थे 15 साल तक। अभी तो जुम्मा आपको 5 दिन नहीं हुए भाजपा में जाकर के, आप इतने धर्मवादी और हरिश्चंद्र कैसे बन गए? चलिए अब यहाँ पर्सनल उस पर आ गए ना, फिर से वही मजबूरी है। पर्सनल अटैक्स क्यों करने हैं कौशल? आप मुझे बताइए, क्या बिना पर्सनल हुए राजनीति नहीं की जा सकती? आतंकवादियों के Okay, only because, Kailash, allow me just 5 seconds. I want to get Rohan because he's raised Rohan's name. Rohan, quickly. This is the mindset. Again, आगे हम लोग मुद्दे की बात करें वापस, ये भाई साहब पर्सनल हो गए तो मैं इनका जवाब दे दूं। हम जब कांग्रेस पार्टी में थे कौशल भाई, तब वो विचारधारा के लिए थे। जब एक पार्टी की विचारधारा आतंकवादी देश के है उसके साथ खड़ी रहती है, हम नहीं रह सकते हैं। ना सनातन के विरोध में रह सकते, ना देश के विरोध में रह सकते। राजनीति में कुछ देने आए हैं। जब लगा कि वहां की जो उनके दरबारी है उन्होंने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश को डुबोना है, वो नहीं होगा। किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आज पन्नूम जैसा आतंकवादी उनके नेता के स्टेटमेंट के साथ में खड़ा है, एक आतंकवादी, और आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। हर मुद्दे पे जहां पे भी आपकी सरकार है वहां पे आपने तुष्टीकरण का खेल किया हुआ है। हर जगह पे जहां पे भी देश विरोधी बात होती है आप देश को क्रिटिसाइज देश के बाहर जाके करते हैं। नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत अटैक कोई भी आदमी सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े व्यक्ति है, आपको शर्म आनी चाहिए कि विपक्ष में होने के बावजूद भी राज्यों में चुनाव लड़ने में आपके पास मुद्दों का अकाल हो चुका है। लुक एट वेयर दिस डिबेट इज गोइंग। You have nothing against this government. Absolutely. And this silence of Chandrasekhar Jhaji is quite curious and quite baffling, Susi Ben, because I don't know whether the Uddhav Sena has a voice or no voice. You're looking at the Congress fighting, the SP fighting, but Jha Sahab is really quiet, which is a good thing also in politics sometimes, to take a back seat. But jokes apart, Kailash, what does this tell us of our politics? Do people really like this gali politics? I mean, does this translate into votes? रुकिएगा IP सिंह साहब, आऊंगे आपके पास। क्या विरोध दिखा रहे हैं? रुकिएगा पहले टू कैलाश। मणिपुर पर बोले बीजेपी। हाँ, मणिपुर पे सवाल बिल्कुल करिएगा, गाली मत लीजिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है। कैलाश, the opposition has taken to the political discourse, unfortunately, to a very, very low level. As Susi Ben and as others have advocated, and I have on your broadcast network, told this a million times. अगर आपको किसी चीज का विरोध करना है तो आप मुद्दों पे विरोध करिए। अब है क्या कि ऑपोजिशन के पास अगर मुद्दों का अभाव है, then they transcend into personal attacks. The fine line is very blurred. It's a fine line, and you cross that, and that is what we have seen not only just from 2014. Not only when Honorable Prime Minister from being the ex-Chief Minister of Gujarat became the Honorable, prior to that also, right from Madam Sonia Gandhi talking about referring to him as मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, I mean such kind of statements, right from Sonia Gandhi to Manishankar Ayyar, and this in the past 10 years because of the fact that they know that they are not able to defeat the Bharatiya Janata Party. So I was very civil when they were talking, and I'm always very Kaushal, let's listen to him for 30 seconds. Let him complete his point, then you can counter him, please. Yes. Kaushal. And right from रुकिएगा, only Kailash. Prior to 2014, we have seen numerous attacks on him when even the Honorable Prime Minister was the Chief Minister. After 2014, they have only grown much. Why they have grown much? Two straight points. A, when you are baffled, you don't know what to do, you directly go on a personal attack. That's a very human tendency. Because if you do not have a concrete defense, then naturally you bicker around and you take it personal, and that's a very human tendency which you even see the court of law. Secondly, the fact is that when from 2014 to 19 to 24, so many state elections in this country in the past 11 years, that primarily as a party or as a principal opposition, you're decimated. And when you know that fact, but you cannot accept that fact, is when you are totally blurred of the actual issues that you should be speaking about, but then you try to ring fence around and फिर आप गाली देने पे आ जाते हो, क्योंकि आप सामने कुछ रख ही नहीं सकते हो ना। आप जब मुद्दा ही नहीं रख सकते हो तो अब आप क्या बोलोगे अगर माइक के सामने? Okay. लेकिन झा साहब, आप इतना खामोश क्यों है? Why are you so unusually quiet? Are you sensing the defeat? Are you reading the defeat already? We are not sensing the defeat. We are sensing the victory in this election. First thing. Second thing is that if the ruling party says that we have never said anything against the opposition leaders personally, so they should categorically know that who has started all this. The thing is that Goli Maro -- started by BJP. The thing is that non-biological son
who started this, Mr. Modi? Didi oh Didi, who started this, Mr. Modi? So if these things have come out from Mr. Modi itself, targeting personally the leaders of the opposition, so the leaders of opposition have befitting reply to them. So they have replied to it befittingly, and they have considered it as a mark of respect to themselves. See, Because this is for the second time in yes. this debate, sir, that you're justifying this. You know, so Yes, I mean, I really need to pinch this myself justification- because we haven't seen such debates, Kaushal. देखिए, आप तो कहते हैं कि ऐसी बात ही नहीं होती. वो कहते हैं बिल्कुल, अगर वो एक थप्पड़ मारेंगे, हम दूसरा गाल आगे थोड़ी ना करेंगे. हम दूसरे पे भी थप्पड़ मारेंगे. भाजपा के लोगों के बीच क्यों कभी नहीं बोलते? देखिए, मेरी बात सुनिए. एक छोटा सा मेरा मुद्दा है कि हमने 10 मुद्दे गिनाए आपको. हमने उत्तर प्रदेश की बात की, हमने मणिपुर की बात की, हमने महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी के बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, परंतु उसके बाद भी आपने हमको घेरा. लेकिन नहीं, तो आप गाली गलौज पर अगर उतर आएंगे ना कौशल, तो जनता पूछेगी ना कि ये कौन सी दुकान है? ये नफरत का बाजार है, ये मोहब्बत की दुकान है जहां पर इतनी गालियां हैं. 100 से ऊपर गालियां मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, मेरी बात समझिए, बिल्कुल कहीं पर गालियां नहीं है. आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगाते हैं. ये एक लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है कि चौपालें बैठती है, लोकतंत्र में डिस्कशन होता है. परंतु अगर दो ग्रुप गुट अगर कोई बात बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम मुद्दे गिनाने के बाद भी आप हमें ही कोस रहे हैं जो विपक्ष में है महाराष्ट्र में, तो मुझे नहीं लगता कि ये हेल्थी डिस्कशन हो रहा है. इनसे पूछिए कि मणिपुर पर आप क्यों जवाब नहीं देते. इनसे कहिए कि यूपी के अंदर योगी जी वहां घूम रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं जहां 10 बजे जिंदा जल गए. हमारे मणिपुर के अंदर मोदी जी अमित शाह नहीं जा रहे हैं जहां पर की जो है विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं. बीजेपी के विधायक के घर जल गया. ठीक है, आपने सवाल पूछा, रोहन और सुसी बहन दोनों जवाब देंगे, बट मैं आपको वही कहती हूँ कि अगर आप गालियां रोज बोलेंगे सर, तो डिस्कशन गालियों पे होगा. अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, सरकार से रोज सवाल पूछेंगे, तो वही डिबेट होगी ना. बट रोहन, इज देयर अ पॉइंट व्हेन द ऑपोजिशन सेज दैट यू नो इट इज द बीजेपी दैट स्टार्टेड? See, absolutely not. We are, I think, 2 days after today, after 20th, there is elections for Maharashtra and Jharkhand. मुझे बताइए, ये चुनाव में शुरुआत किसने की? जितने भी चुनाव देख लीजिए, देखिए आप पीछे जा सकते हैं, 20 साल भी पीछे जा सकते हैं. जब वाजपेयी जी के लिए तब भी पीछे गए थे, आप उसके भी पीछे जा सकते हैं. देयर इज नो एंड टू इट. बट हु हैज स्टार्टेड नाउ व्हेन वी आर डूइंग, एंड यू आर राइटली सेइंग टुडे, इफ द हेडलाइंस इज दैट नेगेटिव थिंग, इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर खड़गे स्टेटमेंट. You cannot justify all the time. Why this time? Because that's what, when we are discussing on the eve of particular election, it clearly sets the narrative, and this election they have lost it. That's why they have to resort to this kind of situation. So it shows their frustration. Yes. सिंह साहब सॉरी बोलेंगे सर, कांग्रेस के बिहाफ पे सॉरी बोलेंगे कि आगे से इस तरह की भाषा का प्रयोग इंडिया अलायंस नहीं करेगा. सॉरी बोलिए सर. मणिपुर के अंदर जो है कि गुजरात दंगों का विलेन कौन था? अब देखिए आप गुजरात दंगों पे पहुंच गए सर. संसद में मोदी जी एक महिला के लिए क्या कह रहे थे? किस राक्षसी से तुलना कर रहे थे? हंसी का उपहास उड़ा रहे थे. जस्टिफाई कर रहे हैं ना अब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं. अब बोल लेने दीजिए. मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों सांप हैं. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सही कहा कि आरएसएस का मुंह भी कुचलना चाहिए, और ये सांपनाथ नागनाथ दोनों हैं, इनका मुंह कुचलना जरूर चाहिए. मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप उसी बात को रिटरेट कर रहे हैं ना सर. आप वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. आप कह रहे हैं भाजपा और आरएसएस सांप है, जहरीला सांप है जिसको कुचलना बहुत जरूरी है. सांप, इनका मुंह कुचलना चाहिए. लोग किसका मुंह कुचलेंगे सर? किसका मुंह कुचलेंगे? तो आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए. कमाल है. आप देखिए कौशल, अब आप देखिए कौन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. 5 सेकंड. देखिए ऐसा है, मैं किसी भी प्रकार के बांटने वाले बयान का जो है पक्ष नहीं रखता, ना मैं पक्ष करता हूं. मैं किसी भी प्रकार जो हिंदू धर्म में, हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटे, जो है एक प्रकार से देश को विभिन्न तरीकों से बांटे, मैं उसका समर्थन. आप टेलीविजन पर आकर ऐसे लेक्चर देते हैं और आप ही के नेता, आप देखिए आप ही के दोस्त आपके साथ बैठकर सेम शो में इस तरह की भाषा का फिर इस्तेमाल कर रहे हैं सर. अरे सुन लीजिए, पार्टी लाइन भी कोई चीज होती है. भाजपा जो है लगातार हिंदू और मुसलमान पर बांटना चाहती है, जिस पर कि वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, परंतु हम इसका विरोध करते हैं. अच्छा, आप मानते हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो एक है सेफ है, इसलिए आपको दिक्कत कर रहा है. आप ये बात मान गए ना? सुन लीजिए, आप क्यों कांग्रेस की जो छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं? अरे सर देखिए, मैं तो सबकी गलतियां ढूंढूंगी. मेरा काम यही है सवाल पूछना. की भी गलतियों को देखिए. मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं आज? ये यूपी के अंदर योगी साहब क्यों नहीं उन बच्चों को करते? सुन लीजिए मेरी बात को. कांग्रेस किसी भी प्रकार से किसी धर्म का, जाति का, किसी पंथ का पक्ष नहीं करती. हम सांप्रदायिक, हम जो है धर्मनिरपेक्षता पर जो है ना विश्वास करते हैं. इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी अगर कोई करता है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. देखेंगे. आप तीनों दोस्त बैठे हैं नीचे, तीनों विंडोज में, आप तीनों दोस्त हैं, लेकिन आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं
बात करते हैं और एक दूसरे की बातों को आप मानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में अलायंस में एक साथ है. We'll track what happens. Susi Ben and all gentlemen, thank you so much. The big Maharashtra elections, Times Now, your one-stop destination for everything you need to know. We head into a quick break.